हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सिविल एंड क्रिमिनल मैनुअल। इसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सिविल मैनुअल। द सिविल मैनुअल इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे provides comprehensive directions to judicial officers, court staff, practitioner, litigants, ensuring that judicial proceedings are conducted in an orderly, methodical, and uniform manner across the state. It operates as an interpretative and administrative guide that standardizes court practices, elaborates procedural steps, and prescribes norms for the conduct of judicial business. It covers matters ranging from the establishment and duties of court staff, handling of records, court fees, and management of documents to the detailed process of institution, trial, and disposal of civil suits. Moreover, it provides directives regarding interim applications, discovery, examination of witnesses, preparation of decree, execution proceedings, and the maintenance of certified copies and registers. तो बेसिकली जो मैनुअल है इसमें हमको जो सारी क्लरिकल प्रोसीजर्स है, स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बारे में हमको बताया गया है। इसमें हमको लॉज या फिर उससे रिलेटेड प्रोविजन उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उसके लिए हमको वो बाकी के जो सिविल लॉज है, स्टैट्यूट्स है, उनको ही रेफर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उनको किस तरह हैंडल करना है सारे रिकॉर्ड्स को या फिर जो कुछ भी प्रोसीजर्स है, और वो सारे प्रोसीजर ऑल ओवर इंडिया सेम होनी चाहिए सो दैट इट इज इजी फॉर टू एक्सेस टू जस्टिस। उसके लिए ये मैनुअल एक हैंडबुक की तरह एक गाइड है जहां वो हेल्प करेगा प्रोसीडिंग में। पर्पस एंड स्कोप ऑफ सिविल मैनुअल, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल मैनुअल टू enhance efficiency and integrity of civil court functioning. It seeks to ensure uniform procedure in all subordinate courts, assist judicial officers in the day-to-day discharge of administrative and judicial duties, clarify CPC provisions that require practical explanation, regulate court establishment including the responsibilities of clerical staff, provide guidelines for lawyers, their fees and their clerks, standardize record keeping, document filing, issuance of writs and use of prescribed forms, facilitate transparency, accountability and traceability in judicial proceedings. The civil manual is therefore a both procedural character and administrative handbook. तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, मतलब यूनिफॉर्म प्रोसीजर होनी चाहिए, या असिस्टेंस टू जुडिशियल ऑफिसर्स, सीपीसी की अगर कोई प्रोविजन का क्लैरिफिकेशन चाहिए, या फिर कोर्ट की कुछ एस्टेब्लिशमेंट को रेगुलेट करना हो, लॉयर को कोई गाइडलाइंस, या फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई स्टैंडर्डाइज मेथड, और ट्रांसपेरेंसी, इन सबको गाइड करने के लिए एक रूल बुक है जो ये सिविल मैनुअल प्रोवाइड करता है। जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट एंड कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, a functioning judiciary rests as much on administrative robustness as on substantive decision making. तो जो जुडिशरी है, जिसका वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सब्सटेंटिव जो हमारे लॉज है वगैरह उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर भी स्मूथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Chapter 31, para 578 to 628A of the Civil Manual lays down the architecture of government court establishment. It outlines the roles and responsibilities of ministerial staff, the maintenance of registered diaries and accounts, custody, movement and preservation of records, supervision of processes, safe handling of seals, stationery and valuables, protocol for inspection by judicial officers. This chapter ensures that the administrative machinery operates smoothly, enabling the judiciary to focus primarily on adjudication. तो ये सारी चीजें सिविल मैनुअल में बताई गई है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। लॉयर, फीस एंड क्लर्क्स, लॉयर प्ले अ सेंट्रल रोल इन सिविल लिटिगेशन। चैप्टर 32 para 629 to 650 governs recognition and discipline of advocates, enrollment and duties of lawyers, clerk, filing of wakalatnama, scale of professional fees, conduct, decorum and interaction with court staff,
These directives promote ethical practice, professionalism and procedural discipline in courtroom functioning. तो जो भी प्रोविजंस है लॉयर को लेके, फीस को लेके या फिर क्लर्क्स के रिगार्डिंग, तो जो कि कंडक्ट, डेकोरम या फिर इंटरेक्शन रहेगा उनके साथ, उसको लेके जो कुछ भी गाइडलाइंस है वो सारी इस सिविल मैनुअल में दी गई है. Institution and preparation of suit. The civil manual elaborates the pre-trial phase in detail. Chapter 2, para 7 to 29 explains frame of suit, pleading, structure, verification and drafting standards, requirements of valid plaint, valuation, jurisdiction and presentation. तो जो टेक्निकल क्लैरिकल पार्ट है वो बताया गया है. वैसे सीपीसी में बाकी के प्लेंट के बारे में, प्लीडिंग्स के बारे में जो प्रोविजंस है वो बताए गए हैं. यहाँ पे जो क्लैरिकल काम है, मतलब हाउ इट मस्ट बी, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सब एक्सप्लेन किया हुआ है. चैप्टर 23 पैरा 19 487A to B deals with parties to the suit including necessary and proper parties, non-joinder or misjoinder, suit involving minors, firms और गवर्नमेंट. तो इस चैप्टर में पार्टीज के बारे में बताया गया. नेसेसरी पार्टी, नेसेसरी पार्टी कौन होता है? जो पार्टी मस्ट है कोई ऑर्डर पास करने के लिए. प्रॉपर पार्टीज, जो पार्टी है सूट में वो सारी करेक्ट है, भले ही वो नेसेसरी हो या ना हो, मतलब उन वो रहते हुए या ना रहते हुए भी ऑर्डर पास किया जा सकता है. लेकिन नेसेसरी पार्टी का कंडीशन है कि उनके बिना ऑर्डर पास नहीं हो सकता. नॉन ज्वाइंडर, अगर कोई नेसेसरी पार्टी है उसको सूट में ज्वाइन नहीं किया है तो इन दैट केस नॉन ज्वाइंडर रहेगा. मिस ज्वाइंडर, अगर कोई प्रॉपर पार्टी, अगर कोई पार्टी को गलत पार्टी को ज्वाइन कर दिया है तो देन इन दैट केस मिस ज्वाइंडर. ये सारे कंसेप्ट यहाँ सिविल मैनुअल में आपको इलेबोरेट नहीं करने हैं, ये सारे सीपीसी के कंसेप्ट हैं. यहाँ पे आपको इसका सिर्फ जो है प्रोविजन, आई मीन टू से कि जो भी आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं ये होने के बाद उसके बारे में बताया गया है. तो कंसेप्ट तो पूरे सीपीसी के हैं. ये सूट्स इन्वॉल्विंग माइनर्स, फर्म्स और गवर्नमेंट. चैप्टर 27 पैरा 522 to 528 governs the filing of documents requiring early production of evidence, proper endorsement, list of relied upon documents, custody and return procedures. Together, this chapter ensure that suit commences in a complete, coherent and procedural valid form. Court fees and process fees. Court revenue and administrative expenses are integral to the justice delivery system. Chapter 24 para 488 to 503 mandates correct computation of court fees, levy of process fees for summons and notice, refunds and deficit recovery, exemptions for specific cases. This ensures financial correctness and prevents delay due to फी रिलेटेड ऑब्जेक्शन. तो जो कुछ भी कोर्ट फी है, समन्स फी है, नोटिस फी या फिर कोई रिफंड है, तो अगर कुछ स्पेसिफिक केस में एग्जम्पशन है तो उन सब के बारे में चैप्टर 24 में बताया गया है. Interim reliefs and interlocutory applications. Interim orders form an essential protective mechanism in civil litigation. जो सारे interim reliefs हैं उनके बारे में सीपीसी में बताया गया है. तो उनके जो प्रोसेस है उसके बारे में चैप्टर 8, 9 और 10 में आउटलाइन बताई गई है. फिर फाइलिंग ऑफ इंटरिम एप्लीकेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिडेविट्स, इमरजेंसी एंड एक्स पार्टी इंजंक्शंस, कंडीशंस, अंडरटेकिंग्स एंड सेफगार्ड्स, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रांटिंग टेम्पररी ऑर्डर्स. दिस प्रोविजंस बैलेंस urgency with fairness and ensuring that interim relief are not misused. तो जो सारे प्रोविजंस है इंटरिम रिलीफ के रिलेटेड वो चैप्टर 8, 9 एंड 10 में दिए हुए हैं. डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड इंटरोगेटरीज. ट्रूथ सीकिंग इज एट द हार्ट ऑफ सिविल एडजुडिकेशन. चैप्टर 6 पैरास 84 to 86 एंड चैप्टर 8 पैरा 201 to 203 deal with discovery of documents, inspection by parties, interrogatories and their answers, consequences of non-compliance,
These mechanisms reduce surprises at trial, encourage transparency and help parties narrow down issues. तो ये सारे प्रोविजंस को रेगुलेट करने का तरीका चैप्टर 6 एंड 8 में दिया हुआ है. Admissions in pleading. Admissions simplify the trial and may even render it unnecessary. Paras 524 and 646 explain in chapter 32 explain that express and implied admission, admission in pleadings, documents or orally before court, use of admission for judgment under order 12 rule 6 CPC. This enhances efficiency by avoiding needless litigation. तो जो एडमिशन बताया गया है, अगर कोई कुछ केस रिलेटेड एडमिट करता है जो कि उसके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, तो इससे केस सिंप्लीफाई हो जाता है. तो उस एडमिशन का जो कुछ भी प्रोसीजर है वो पैरा 524 एंड 646 में चैप्टर 32 में एक्सप्लेन किया गया है. Witness and examination procedures. The manual prescribes an elaborate procedure relating to witness. Chapter 8, para 102 to 150 describes filing of witness list, service of summons, payment of diet money, compelling attendance, examination stages are detailed in Chapter 10, para 253, 252, 255. Examination in chief, cross-examination, re-examination, commission evidence, para 151 to 222. These ensure that witnesses are examining systematically and evidence is recorded faithfully. तो चैप्टर 8 जो प्रोविजन है विटनेस का मतलब एग्जामिनेशन का और कैसे विटनेस को बुलाया जाए उसके बारे में बताया जाता है. फाइलिंग ऑफ विटनेस लिस्ट मतलब अगर कोई पार्टी को चाहिए ये सारे विटनेस हैं तो उनकी लिस्ट फाइल करनी पड़ती है और अपोजिट पार्टी को भी देना पड़ता है. फिर समन्स थ्रू उनको बुलाया जाता है. पेमेंट ऑफ डाइट मनी मतलब अगर उनका ट्रैवलेंस अलाउंस है जो कुछ भी है हम उसको भत्ता कहते हैं तो वो उनको पे करना पड़ेगा. कंपेलिंग अटेंडेंस अगर विटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका आना जरूरी है तो उसको कोर्ट कंपेल भी कर सकता है अटेंडेंस के लिए. एग्जामिनेशन स्टेज है वो चैप्टर 10 में बताए गए हैं. जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ जो पार्टी विटनेस को बुलाती है तो वो पहले उसको एग्जामिन करती है इन चीफ, उसके कहते हैं. क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब अपोजिट पार्टी उसको फिर क्वेश्चन पूछती है क्रॉस एग्जामिन. और री एग्जामिनेशन जो पार्टी फिर से जिस पार्टी ने बुलाया है फिर से जो कुछ भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया उसको क्लैरिफाई करने के लिए री एग्जामिनेशन कर सकती है. नई चीजें नहीं पूछते री एग्जामिनेशन में. क्रॉस एग्जामिनेशन में जो चीज उसने बोली है उसको क्लैरिफाई करने के लिए जिस पार्टी ने उसको बुलाया है वो री एग्जामिनेशन करती है. तो कमीशन अगर अपॉइंट किया है और कमीशन उसको एविडेंस प्रोवाइड करता है तो उसके बारे में पैरा 151 टू 222 दिया हुआ है. Appearance of defendant, chapter 3, para 30 to 43 deals with mode of appearance, non-appearance and ex parte proceedings, procedure for setting aside ex parte orders. This protects both plaintiff rights to proceed and defendant's right to be a hearing. तो अगर डिफेंडेंट को हमने बुलाया है तो उसका अपीयरेंस का क्या मोड होगा, कैसे उसको बुलाया जाएगा, समन्स, नोटिस या कुछ प्रोक्लेमेशन, वारंट जो कुछ भी है उसका मोड का अपीयरेंस का उसको बुलाने का तरीका. नॉन अपीयरेंस अगर वो नहीं आता है इवन आफ्टर सर्विस ऑफ समन्स तो इन दैट केस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कैरीड आउट होती है, मतलब उसके बिना भी डिफेंडेंट के बिना भी केस चालू हो जाता है. तो प्रोसीजर फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर्स, इन केस अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चालू हो गई है और कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है एंड ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो वैलिड सर्कमस्टांसेस है उसकी वजह से डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो पाया था एंड इन दैट केस एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका है और फिर डिफेंडेंट अपीयर होता है तो वो उसको पहले वो ऑर्डर सेट असाइड करके लेना पड़ता है विथ प्रॉपर ग्राउंड्स. तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. द हियरिंग एंड ट्रायल ऑफ सूट. द मेजर पोर्शन ऑफ मैनुअल इज डिवोटेड टू ट्रायल प्रोसीजर. चैप्टर 10 पैरा 250 to 266 addresses framing of issues, burden of proof, order of recording evidence, final arguments. The manual also details right of parties, chapter 3 and 6, duties of court, rule for adjournment. The overall aim is to ensure fair, expeditious and well regulated trial. तो ये सारे
हियरिंग और ट्रायल के स्टेप्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। कंटिन्यू रहेगा इसी का आगे का पोर्शन। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।